નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું દોલતભાઈ ત્રિવેદી લો કોલેજ પરિવાર તરફથી ડોક્ટર અંકિત રામી ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપલ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ફરી એક ખૂબ સરસ વિષય સાથે આજે ફરીથી એક વેબિનારનું આપણે આયોજન કર્યું છે અને ખરેખર ફરીથી મને એવું થાય છે કે આટલી મોટી સંખ્યાના અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ આજે જોઈન થયા છે આપણા વેબિનારમાં, તે બધા સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વકીલ મિત્રો તેમજ ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાના જે પ્રિન્સિપલ્સ મિત્રો છે એ જે આજે જોઈન થયા, તો એ સર્વેનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, એસોસિએટ પ્રોફેસર, પ્રોફેસર જે આજના વેબિનારમાં જોઈન થયા છે એમનો હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આ વેબિનાર એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. એ મહત્વપૂર્ણ એટલા માટે પણ છે કે આજે આપણા ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આજના સેમિનારના આપણા ચીફ ગેસ્ટ એડવોકેટ કાર્તિકેય પનેરી સર છે, જે પોતે ખૂબ જ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ટેલેન્ટ ધરાવે છે. તેઓ ખૂબ જ ઇન્ટેલિજન્સ અને વેરી યંગ એજના અંદર એમને ખૂબ મતલબ સાયબર ક્રાઇમના અંદર એમને ખૂબ સરસ કામ કર્યું છે. આપણે એમની વાત કરીએ તો સાયબર લોમાં અને ખાસ કરીને એમને સાયબર લો છે, સાયબર ક્રાઇમ, સાયબર ફ્રોડ, ઈ કોમર્સ અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ બાબતે તેમને ખૂબ જ અદ્ભુત જ્ઞાન છે અને લીગલ ટર્મ્સ ઉપર એ ખૂબ સરસ મતલબ કહેવાય ને એ કામ કરી રહ્યા છે. કાર્તિકેય પનેરી સર એ ફાઉન્ડર છે સાયબર લીગલ કન્સલ્ટિંગના, જે અમદાવાદ બેઝ ફર્મ છે, જે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, સાયબર ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન અને ઘણી બધી મતલબ ફિલ્ડમાં એ કામ કરી રહ્યા છે. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? થોડો નેટવર્ક ઇસ્યુના કારણે હું મતલબ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો. સર આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ કે સાયબર ફ્રોડ, સાયબર લીગલ કન્સલ્ટન્સીસ છે, ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન છે, આઈટી ફર્મ્સ, મલ્ટીનેશનલ કંપની, કોર્પોરેશનના અંદર એ પોતે કામ કરી રહ્યા છે. સાયબર સિક્યુરિટીની વાત કરીએ અથવા વર્ચ્યુઅલ કરન્સી અને લીગાલિટીઝની વાત કરીએ તો એમાં પણ ખૂબ સરસ એ મતલબ જ્ઞાન ધરાવે છે. એ જ રીતે જે પણ મતલબ સાયબર લો બાબતની જે વિદ્યાર્થીઓને લગતી જે મહત્વપૂર્ણ બાબત હોય, જે સાયબર ક્રાઇમ જે કહેવાય અથવા જે આપણા આઈટી એક્ટ 2000 મુજબ જે મતલબ ઇન્વેસ્ટિગેશન જે થઈ રહ્યું છે, એમાં કયા કયા એવિડન્સ, કયા પ્રાઇમરી એવિડન્સ કહેવાશે, કયા સેકન્ડરી એવિડન્સ કહેવાશે, એને કેવી રીતે આપણે અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવું, તો એ બધી જે બાબત કહેવાય એના આજના એક્સપર્ટ આપણી સાથે છે, જે આજે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સાયબર ક્રાઇમ આપણને વાત કરશે. તો હું વધારે સમય ન લેતા હું એડવોકેટ પનેરી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ વિદ્યાર્થીઓને પોતાના જ્ઞાનથી અભિભૂત કરે. જી બિલકુલ, થેન્ક યુ રામી સાહેબ. અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક યુ DT Law College and all the family of DT Law College who has given me a chance to represent myself before this webinar. मैं आज का वेबिनार जो है हिंदी में बोलना चाहूंगा. इसका रीजन ये भी है कि बहुत सारे दर्शक मित्र हैं हमारे जो हो सकता है आउट ऑफ गुजरात से भी है, और थोड़ा इजी भी रहेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि मातृभाषा में बोलना मैं चाहता हूँ, थोड़ा प्रीफर करूंगा. हम आज बात करेंगे साइबर लॉ के ऊपर. बिफोर प्रोसीड विद द साइबर क्राइम, पहले हम ये समझेंगे साइबर लॉ क्या होता है. अब जैसे कि आप लोग रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इसके साथ किसी बंदे के साथ कुछ फ्रॉड हो गया, किसी का पासवर्ड हैक हो गया, किसी के पैसे चले गए, बैंक अकाउंट हैक हो गया, कोई क्रेडिट कार्ड हैक हो गया. ऐसा न्यूज आप लोग पढ़ते होंगे, पर किसी को ये नहीं मालूम है ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, कौन सा एक्ट लागू पड़ता है, लॉ है तो कौन सा लॉ इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. तो अब जैसे कि डेफिनेशन है साइबर लॉ की, अगर आप देखे जाएंगे तो साइबर लॉ की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन कोई भी एक्ट में दी नहीं हुई है. चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 देखेंगे, अमेंडमेंट एक्ट जो 2008 है वो देखेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कहीं पे भी साइबर लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं है. हाँ, ये बात है कि साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन जरूर दी हुई है सेक्शन 2 में, बट साइबर लॉ वो क्या है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है. तो
मैं चाहूंगा आपको थोड़ा बेसिक से शुरू करूं, और मैं हो सके उतना मैं, जब हमारा दर्शक मित्र जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं हो सकता है कि थोड़ा लेमन टर्म में बात करूंगा, ज्यादा मैं लीगल टर्म यूज नहीं करूंगा। तो जनरली जो अपार्ट फ्रॉम लॉ जो नॉर्मल पब्लिक है उनको भी थोड़ा समझ में आएगा। तो हम देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि साइबर लॉ की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे साइबर लॉ है क्या फिर, अब और साइबर क्राइम क्या है। अब आप देखोगे साइबर क्राइम जो है ये एक वर्चुअल क्राइम है। जितना भी आप देखोगे कि ये अपने आसपास जो भी नेटवर्क है, ये इंटरनेट है, उसको बोलते हैं साइबर स्पेस। अभी साइबर स्पेस की भी कोई ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी हुई है। ये ऐसा हो गया कि अपने को बुखार आया तो हम लोग पैरासीटामोल जो है उसको जनरिक टर्म्स नहीं जानते हैं, हम उसकी जो स्पेसिफिक डॉक्टर हमको जो दवाई देगा उनके टर्म के हिसाब से वो हम यूज करेंगे। तो जैसे पैरासीटामोल बेसिक टर्म हो गया, जनरिक टर्म हो गया, ऐसे ही साइबर स्पेस एक जनरिक टर्म है। तो मैं ये चाहूंगा आप थोड़ा ध्यान इस चीज में दें कि ये साइबर लॉ और साइबर स्पेस में क्राइम किया कैसे जाता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे साइबर लॉ स्पेसिफिकली डिफाइन इन पर्टिकुलरली के वो इंटरनेट पे जो भी क्राइम होता है बिफोर 2000 कंप्यूटर लॉन्च हुए हैं 96 के अराउंड, उससे पहले अपने किसी भी वर्ल्ड में कहीं पे भी साइबर लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर, ये लैपटॉप, मोबाइल, इसका कोई यूज था नहीं कभी, इतना मतलब थे भी नहीं उस टाइम पे। ये सब शुरू हुआ जैसे जैसे हमारा ग्रोथ हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, हमको नए नए टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने भी अपने आप को एडप्ट किया और हम आगे बढ़े उस चीज में। तो हमने देखा कि जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, पर्सनल, आज ऐसा है कि यहाँ से बैठे अमेरिका अगर मेरे को कुछ भी किसी को बात करनी हो तो एक पैसा भी नहीं खर्चना पड़ेगा और मैं यहाँ से सीधा बात कर सकता हूँ। वो है टेक्नोलॉजी की देन। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी साथ में क्राइम भी बढ़ने लगा। बिफोर 2000 कोई ऐसा एक्ट नहीं था। जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन की एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार किया गया इस चीज के ऊपर के टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है तो उसके लिए हमको एक ऐसा लॉ चाहिए कि कंट्रोल कर सके जो ऑनलाइन जो चीज हो रही है। पर तब तक क्राइम का इतना नॉलेज नहीं था उन चीजों में, तो उन लोगों ने यूनिसेट्रल एक लॉ रेडी किया, उन लोगों ने फॉर्म किया और वही जो यूनाइटेड नेशन का लॉ है हम लोग फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में। और अलग अलग 60-70 कंट्रीज और है जो इस चीज को फॉलो कर रही है मॉडल ड्राफ्ट को। फिर वो अपने अपने बाकी जैसे हमारा इंडिया है तो उसमें हम लोगों ने इंडियन पिनल कोड हो गया, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, उन सबको एनेक्ट करके इस लॉ का हमने थोड़ा मॉडिफाइड किया। तो अभी हम देखेंगे कि ये साइबर क्राइम होता क्या है। अभी साइबर क्राइम या तो कंप्यूटर को टारगेट बना के किया जाता है या कंप्यूटर को टूल बना के किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबके घर में कंप्यूटर है, अभी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी एक दूसरे के घर, सब खुद के घर बैठे हुए हैं। वो टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर, कोई आईपैड से, कोई टेलीफोन से जुड़ा होगा, मोबाइल से, किसी से भी जुड़ा हो सकता है। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज सबको बेनिफिट भी दे रही है और साथ में किसी को परेशानी भी दे रही है, सबकी प्राइवेसी भी रही है, नहीं रही है। तो कंप्यूटर जैसे कि आज हमने यूज किया है, हो सकता है कोई इसका मिसयूज कर रहा है। कंप्यूटर को टूल कैसे बनाते हैं वो लोग, कंप्यूटर के थ्रू वो लोग एक वायरस भेजते हैं, कंप्यूटर के थ्रू वो किसी को हैक करते हैं, किसी की वायरस या वॉर्म डाल के वो उन लोगों का कंप्यूटर जो है वो हैक करते हैं। जो उनको नहीं पता होता, कंप्यूटर का ओनर होता है, हो सकता है कि सबको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो फोन यूज करते हैं पर वो सिर्फ फोन इनकमिंग आउटगोइंग और सिर्फ मोबाइल में कुछ पर्टिकुलर व्हाट्सएप हो गया या कुछ नेट सर्फ करने के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज मोबाइल के भी आधे फंक्शन है कि जो लोग यूज नहीं करते हैं। तो कंप्यूटर से भी क्राइम बढ़ रहे हैं और कंप्यूटर को टूल बना के और इस तरह से बताए। और इसकी कैटेगरी 3 कैटेगरी है साइबर लॉ में। अगर देखा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में तो उसकी 3 कैटेगरी दी हुई है। एक अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्राइम होता है, जैसे कि साइबर टेररिज्म हो गया। आपने देखा होगा 26/11 का हमला जो ताज में हुआ था बॉम्बे में, उसके बाद में ये साइबर टेररिज्म वर्ड अस्तित्व में आया है। दूसरा होता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि आपका घर हो गया, आजकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया आपका डेटा। आप जो भी डेटा हो गया वो आपकी प्रॉपर्टी है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, आपका ईमेल हो सकता है, आपके फोटोज हो सकते हैं, वो सब आपकी प्रॉपर्टी है।
और अगेंस्ट द इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में क्या हो गया, जैसे कि आप एक पर्टिकुलर आदमी है, आपको बिन बताए आपका कोई फोटो ले रहा है, आपका वीडियो ले रहा है, या फिर आपका कोई भी वायरस भेज के या कंप्यूटर डैमेज कर रहा है, तो ये 3 कैटेगरी हुई। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, ये आज का अक्टूबर जो महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले 17 अक्टूबर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था। ये 9 जून ऑफ 2000 को ये एनेक्ट हुआ था। जनरल बॉडी ऑफ हमारे जो पार्लियामेंट है और लोकसभा में प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया था, और ये भी 20 साल पहले 17 अक्टूबर को ये इंप्लीमेंट हुआ था। तब से हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमल में है। तो उसके बाद में ये लॉ, इसका बनने का रीजन क्या था? बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड है, अलग अलग कोड है, अभी ये उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं तो इस चीज की जरूरत नहीं होती। पर ये पूरा अलग लॉ है। इसमें स्पेसिफिकली इन लोगों ने एम्फसाइज किया है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटर नहीं हुआ था, अगर हमको कुछ चीज खरीदनी होती थी, हमको स्पेशली घर से बाहर जाना पड़ता था, कुछ चीज खरीदनी पड़ती थी। आज पहले हमको कुछ पोस्ट भेजना होता था तो हम लोग जाते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, घंटों खड़े रहते, लाइन में खड़े रहते, फिर हम लोग पूरा टाइम हमारा वो स्पेंड करके वो एक चिट्ठी भेजते थे। वो अगर सपोज यूएस से भेज रहे तो 15 दिन, 20 दिन, महीना लगता था। अभी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आने से ई कॉमर्स भी बढ़ा है। जैसे कि आपको कुछ शॉपिंग करना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से इजीली आपको जो चीज चाहिए वो घर बैठे मंगवा सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने ही रिकॉग्नाइजेशन दिया है ई कॉमर्स को और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स को। पहले के जमाने में कैसा होता था, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम ऐसा था कि अगर कोई भी बंदा है उसको किसी के साथ एग्रीमेंट करना है, तो सपोज कोई बंदा बेंगलोर में या बॉम्बे बैठा हुआ है और एक बंदा अहमदाबाद में कंपनी में लेके बैठा हुआ है, दोनों को कोई पर्टिकुलर एक एग्रीमेंट करना है तो या तो उनको वहां जाना पड़ता था या फिर वहां से बंदे को यहाँ बुलाना पड़ता था या फिर वो लोग कुरियर करते थे और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज होते थे। आज कैसा हो रहा है कि इजी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको डिजिटली हम बोलेंगे कि रिकॉग्नाइजेशन दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ये भी महत्व है कि इसकी वजह से ये सब चीज इजी हो गई है। आप Amazon देखोगे, फ्लिपकार्ट देखोगे, अलग अलग कंपनीज है, ईमेल, जीमेल जो अलग अलग है, वो सब भी इसी की देन है। अगर ये आज, क्योंकि आज आप देखेंगे कि अगर हम किसी को कोई भी चीज भेजते हैं तो वो रिलाई कैसे करेगा कि ये बंदे ने ये चीज भेजी हुई है, वो सब पॉसिबल हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अमेंडमेंट क्या हुआ। तो पहले जो 2000 में जब एक्ट बना, साइबर लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उस टाइम તમારા લે कोरोना आ गया कॉल जा रहा है कहीं से, अगर इफ यू कैन म्यूट समवन। हां जी मौलवी लिया हमारी लेक्चर चालू तो बागे थी आउट में पास साहिल प्लीज आपका माइक बंद करो। तो साहिल साहिल हो गया તો લેક્ચર ચાલુ થઈ ગયું એ અમાર બધાથી ઊંધું છે રવિવારે રાખો એટલે આપણે રાખો લે ભાઈ પ્લીઝ આપનો વોલ્યુમ બંધ કરો। સર તમારું વોલ્યુમ બી બંધ થઈ ગયું, તમારું માઇક બી મ્યુટ થઈ ગયું છે। હવે આવતો હશે અવાજ? યસ યસ સર। હા, તો बिफोर 2000 આપણે अगर જોવા જઈએ तो ये टाइम में उस टाइम पे जो लॉ था वो नया था, तो उसमें इतने जो बेसिक सेक्शन दी हुई थी उसमें हैकिंग था, पोर्नोग्राफी था, टेम्परिंग विद सोर्स कोड था, पर इतना वो नहीं था। फिर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया, हमारी गवर्नमेंट ने और उनके सबॉर्डिनेट ने, कि अब 2000 से लेके 2008 उसमें दुनिया काफी बदल चुकी थी।
ऑलमोस्ट सब घर में कंप्यूटर पहुंच चुका था और सबके पास ऑलमोस्ट मोबाइल आ गए थे। तो सब नीड भी हुई, जैसे कि लोग पहले ऑर्कुट यूज करते थे, कोई फेसबुक यूज कर रहा था, तो उस टाइम पे हम ये देखे जाएंगे अगर जो सोशल मीडिया है वो भी बहुत ज्यादा फैल रहा था। तो सोशल मीडिया में ये सब जो चल रहा था तो देखा कि अगर सपोज कोई लिमिट नहीं थी ऑनलाइन, अगर कोई किसी को कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई अननेसेसरी रिव्यू दे रहा है, कोई ऐसी वैसी चीजें बोल रहा है, तो उसके लिए भी इन लोगों ने देखा कि अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो फाइनली 2008 में ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 था जो ओरिजिनली, उसमें 94 सेक्शन थे और 13 चैप्टर थे। जो इन 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये सब जो सेक्शन है वो बढ़ी और 124 सेक्शन हो गई थी और 14 चैप्टर हो गए। और जो शेड्यूल थे 2000 आईटी एक्ट 2000 में 4 शेड्यूल थे, वो कम करके 2 शेड्यूल में पूरा एक्ट कर दिया इन लोगों ने कवर। अभी जो मेजर अमेंडमेंट आया वो क्या आया हम वो देखते हैं। एक तो सबसे पहले आया सेक्शन 66A। अब सेक्शन 66A क्या है हम पहले ये समझेंगे। सेंडिंग एनी काइंड ऑफ ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन और कंप्यूटर और सोशल मीडिया। तो जैसे कि आप ऑनलाइन फेसबुक पे या किसी को आपने देखा कि बहुत हेट्रेड स्पीच होती है, अगर आपको किसी से कुछ पर्सनली बदला नहीं ले सकते हैं वो तो ऑनलाइन बदला लेते हैं, तो उसके लिए ये सेक्शन जो है सबसे मेन बोल सकते थे। तो सेक्शन 66A वो अमल में आई कि अगर आपने किसी को ऑनलाइन गाली गलौज करी, अगर आपने कोई अश्लील या ऑफेंसिव मैसेज उसको भेजा जिसकी वजह से उसकी लागणी जो है, उसकी जो फीलिंग है वो हर्ट हुई है, तो वो आपके अगेंस्ट में एफआईआर कर सकता है। तो वो एफआईआर कहां करेगा? हर एक जगह पे, आज तो हर एक जगह पे साइबर सेल हो गए, हर एक सिटी में साइबर सेल है। उस टाइम पे हर एक जगह पे साइबर सेल ने, जैसे पुणे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और फिर अहमदाबाद, ऐसी 4-5 मेट्रो सिटी थी जहां पे साइबर सेल था। उसके बाद में दूसरा अमेंडमेंट आया सेक्शन 69A में। उसमें गवर्नमेंट ने पावर दिया कि अगर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एक ऐसी चीज जो उनके नॉलेज में आती है कि जो ऑफेंसिव है या उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा कंप्यूटर है उसमें से कोई मैंने इलीगल एक्टिविटी की है, जैसे कि अभी आप देखोगे टिकटॉक, रिसेंट एक अभी आपको एग्जांपल देता हूं, जो टिकटॉक है जो चाइना बेस्ड कंपनी थी वो गवर्नमेंट ने बैन करी। तो गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, गवर्नमेंट ने एक नोडल एजेंसी और सबको एक पावर दिया अंडर सेक्शन 69A कि आप चाहो, अगर आपको कोई कंप्लेन मिलती है या आप अपने सुओ मोटो पावर यूज करके एक पर्टिकुलर कोई, जैसा कि अभी 59 एप्स जो बैन करी, वो क्यों करी? वो हमारा डेटा चोरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा था, प्राइवेसी जो हमारी थी वो थोड़ी डेंजर में थी, तो गवर्नमेंट ने पावर दिया। ये 2 चीज और उसके अलावा बहुत सारी चीजें, अगर हम पूरी बात करने जाएंगे तो आज का दिन भी कम पड़ेगा, तो मैं बेसिक चीजें भी दी। और एक इंट्रोड्यूस किया चाइल्ड पोर्न के, जो अभी थोड़ा चलन हुआ था बीच में कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो चलन था कि लोग फॉरवर्ड करते थे, देखते थे, तो एक वो अमेंडमेंट हुआ। एक साइबर टेररिज्म जो 26/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद में गवर्नमेंट ने ये चीज भी ऐड करी, क्योंकि पहले सिर्फ आईपीसी अप्लाई करते थे। तो ये मेजर जो अमेंडमेंट हुए 2008 में हुआ। तो इसके बाद में ये अमेंडमेंट होते रहे और अभी उसके बाद हम देखेंगे जो सेक्शन 66A है 2000 से 2015 तक ये सब चला। फिर 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सेक्शन 66A है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए स्क्रैप डाउन कर दिया। अब उसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन 66A थी कि अगर आप किसी को ऑनलाइन मतलब कोई मैसेज भेजते हो, ऑफेंसिव मैसेज, तो आपके अगेंस्ट में एफआईआर हो सकती थी। और मेजर जो भी हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जितने भी सेक्शन है मोस्ट ऑफ कॉग्निजेबल है, मतलब आप जो पुलिस ऑफिसर के पास पूरा पावर है कि उसको वारंट के बिना, उसको वारंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन है या उनको आपका कुछ मालूम पड़ता है कि आपने कोई क्राइम किया है, तो दे हैव पावर कि दे कैन कम टू योर प्लेस एंड आपको अरेस्ट कर सकते हैं। नो डाउट इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, 3 साल से लेके 5 साल तक की अलग अलग जगह पे कुछ सेक्शन में है कि मतलब जो सजा होती है 3 से 5 साल तक की है और 1 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख तक फाइन है। कुछ जैसे सेक्शन है, साइबर टेररिज्म हो गया। टेररिज्म में सेक्शन 66F में उसको डिफाइन किया है
तो सेक्शन 66 एक्ट में जो साइबर टेररिज्म है वो एक गंभीर प्रकार का गुना माना है, और एक जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी ऑफ वुमन है, उन सबको थोड़ा गंभीर गुना मान के अगर आपने साइबर टेररिज्म में आप पकड़ा गए हो तो आपको बेल नहीं मिलेगी और उसमें लाइफ इम्प्रिजन मिलेगा आपको, तो आप पूरे लाइफ टाइम के लिए जेल जाओगे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में अगर पहली बार पकड़ाते हो तो 3 साल की है कैद और 2 लाख फाइन, और अगर सेकंड टाइम अगर आप उसमें अरेस्ट होते हो तो 5 साल तक की जेल है और 10 लाख तक का फाइन है उसमें। ऐसे अलग अलग सब क्राइम है उसमें। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं भाई क्राइम। अगर आप देखोगे चैप्टर 11 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अलग अलग ऑफेंसेस का बाइफर्केशन दिया हुआ है, जैसे सेक्शन 65 हो गया टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स कोड, सेक्शन 66 हो गया तो डैमेज ऑफ कंप्यूटर, बी हैकिंग, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, वो अलग अलग जगह डिफाइन किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं सेक्शन 67 है जो पोर्नोग्राफी है, उसकी सजा है। तो मेजर ये अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने कभी पढ़ा है या आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप अगर ये पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिनारियो। पर उसमें क्या है, अभी भी कुछ चीजें ये 2008 के बाद अभी तक अमेंड नहीं हुआ है, तो अभी ये चीज कोई 2008 से लेके 2020 हो गए, हम 12 साल हो गए, 12 साल में अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ है। पर 2015 में सेक्शन 66A जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभी उसका मतलब क्या है, अगर वो देखे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा एक सागर है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हो और उसमें जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो बहुत सारे पिटीशन दाखिल हुए थे। एक श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है, आप लिख लीजिए और पढ़ना, आपको बहुत काम आएगा ये चीज। तो यूनियन ऑफ इंडिया उस टाइम में एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, श्रेया सिंघल जो लॉ स्टूडेंट थी उसने की थी, तो उसने ये बोला था कि अगर हम लोग ऑनलाइन कुछ भी लिखते हैं, आज सब खुद के अलग अलग रिव्यू देते हैं, सपोज मेरा कोई पर्टिकुलर व्यू है, अगर मैं मेरा व्यू देता हूं तो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम मिला हुआ है, मेरे को आजादी मिली हुई है, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हक दिया है कि मैं चाहूं वो बोल सकता हूं, और मेरे जो भी विचार है वो मेरे खुद के विचार है, वो मैं बोल सकता हूं और मैं जाहिर कर सकता हूं, प्रदर्शित कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, ऑनलाइन में भेज सकता हूं। और अगर ये आईटी एक्ट की जो सेक्शन है अगर ये मेरे को रोकेगी तो ये मेरे जो आर्टिकल जो गवर्नमेंट ने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसका भंग हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पूरा केस स्टडी किया, दोनों टाइप की जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो सुनी, और फाइनली ये फैसला दिया कि सही बात है, ये कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्ट्रक डाउन कर दिया। अभी उससे क्या हो गया कि जैसे कि आज मैं किसी को अगर ऑनलाइन कुछ भी गाली गलौज करता हूं तो व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू, आई कैन फाइल द डेफेमेशन बिफोर द कोर्ट, दैट टू प्राइवेट कंप्लेंट 202 में मैं प्राइवेट कंप्लेंट कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स भी है कि पुलिस वाले जो है वो डेफेमेशन का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, एफआईआर नहीं कर सकते। अगर इफ यू वांट टू फाइल एनी डेफेमेटरी केस अगेंस्ट समवन जिन्होंने आपके कुछ ऐसा बोला है तो आपको प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने की। बाकी सेक्शन से हाँ, पर अभी भी बहुत सारे मेरे रेगुलर केसेस में आते हैं कि अभी भी मेरे बहुत सारे केसेस, अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक केस आया था जिसमें सेक्शन 66A पुलिस वालों ने सेक्शन 66 जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी है, जो सेक्शन अभी अस्तित्व में नहीं है, उसकी एफआईआर उन्होंने लॉन्च करी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कंटेम हो जाता है, पर ठीक है, अभी तक इतना नॉलेज है नहीं किसी को, अभी भी कर रहे हैं। आज हो सकता है अपन आज बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेक्शन 66A के अंदर कोई कंप्लेंट किसी ने दी होगी, कभी कोई हो सकता है किसी ने कंप्लेंट फाइल भी करनी होगी। तो एक ये है। अभी हम बात करते हैं, मैं थोड़ा रियल लाइफ जो हमारे केसेस जो डे टू डे मेरे पास जो केसेस आते हैं, अगर थोड़ा बुक से हटके बात कर रहा हूं मैं, जो डे टू डे अभी आप रोज न्यूज़पेपर में देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि एक किसी बंदे का पेटीएम अकाउंट हैक हो गया, किसी ने फोन किया बैंक की तरफ से कि भाई आपको मेरे अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको आइडेंटिटी नहीं बता पाऊंगा कौन बंदा था, नाम नहीं दे सकता, पर मैं आपको एक केसेस बताऊंगा मेरे जो भी आते हैं। अभी जब से लॉकडाउन हुआ है
उस मार्च से लेके अभी तक ये मोस्ट ऑफ चीजें ऑनलाइन हो गई है। अगर आपको कोरोना वायरस की वजह से लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो लोग सब घर पे चीजें ऑर्डर मंगवा रहे हैं, सब काम घर बैठे कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके सब घर से जितना काम हो सकता है वो कर रहे हैं। अभी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब लोग कंप्यूटर का और इंटरनेट का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्राइम भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। थोड़े दिनों पहले मेरे पास एक केस आया है, जो बंदा था उसको नया क्रेडिट कार्ड मिला था बैंक की तरफ से। बैंक किसी थर्ड पार्टी ने उनको बैंक का एम्प्लॉय बताकर फोन किया। फोन करके उसने इतना बताया कि सर आपका एक क्रेडिट कार्ड आया है और आपको और आपकी वाइफ को एक इसमें आप पॉइंट अगर रिडीम करते हो तो आपको बैंकॉक की या स्विट्जरलैंड की, आप चाहो तो दोनों में से कोई भी एक टूर ले सकते हो। अगर बैंकॉक की लेते हो तो ये आपका पैकेज रहेगा, टोटली फ्री रहेगा, पर उसके डेज इतने होंगे। और अगर स्विट्जरलैंड का लेते हो तो आपका इतना इतना रहेगा और आपको एक नॉमिनल इतने चार्जेस आपको जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो आपको देना रहेगा, बाकी अदरवाइज एवरीथिंग विल बी कवर्ड और फ्री। जो बैंक आपको उसमें टिकट आ गई, ये आ गई, सब कुछ आ गया, रहना करना खाना पीना सब आपको आ गया। तो वो जो बंदा था वो बैंकर था। अब आप एक चीज समझिए, बैंक मैनेजर अगर इसमें विक्टिम हो सकता है तो वो बंदे ने थोड़ा बातों में आया, पहले उसने बोला कि नहीं ये शायद हो सकता है, नहीं दूं करूं थोड़ा। और साइबर के जो क्रिमिनल्स है वो इतने स्मार्ट होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे कितने केसेस में साइबर क्रिमिनल पकड़ाए हुए हैं, आप अगर देखोगे तो उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, पर दे आर वेरी स्मार्ट कि अगर आपके बाजू में बैठे हो तो आपके कंप्यूटर से बिल्कुल आपको पता चले बिना आपके पैसे ले सकते हैं। और बहुत ये लोग ऑपरेट करते हैं बहुत छोटी जगहों से। जब हमारे अभी तक के जितने भी केसेस आए हैं वो कहां से हैं, कोई बिहार से होगा, कोई झारखंड से होगा, कोई मध्य प्रदेश में, कोई ऐसे गांव में, रिमोट एरिया से जहां का किसी ने नाम गूगल में भी आपको नहीं सर्च होगा, या आप मैप में देखने जाओगे तो मैप में भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी जगहों से वो लोग यूज करके आपको कॉम करते हैं। तो बैंक जो हमारा क्लाइंट था, जो बैंक मैनेजर था, तो उन्होंने नहीं करते करते उन्होंने ओटीपी शेयर कर दिया। जैसे उन्होंने ओटीपी शेयर किया उनके अकाउंट से 75,000 रुपीज इंस्टेंटली कट हो गए। अब जैसे अकाउंट से बैंक मैनेजर थे तो उनको नॉलेज तो आ गया कि चलो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो उन्होंने इमीडिएटली उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अकाउंट ब्लॉक करने से ये उनको फायदा हुआ कि उनके बाकी के अकाउंट में जितने पैसे पड़े थे, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी वो बच गई, क्योंकि उनकी क्रेडिट कार्ड की कुछ 5 लाख की लिमिट थी। 75,000 ऑलरेडी कट हो चुके थे, अगर वो प्रिकॉशन नहीं लेते तो 5 लाख भी कट हो जाते। तो ये हो गया साइबर फ्रॉड। इसमें चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया, सेक्शन 66 COD इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, 406 420 अप्लाई कर सकते हो फ्रॉड और चीटिंग की सेक्शन। तो जब ऐसा कोई भी क्राइम होता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपके साथ इस टाइप का फाइनेंशियल कोई भी फ्रॉड होता है तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, वो ब्लॉक करवा दीजिए। सेकंड, ये करवाने के बाद तुरंत अगर आप घर बैठे हो, घर से डायल करना है तो डायल 100, पुलिस स्टेशन में आप इस चीज की जानकारी दीजिए, FIR करवाइए। अगर वो नहीं करते हो, गवर्नमेंट ने एक दूसरी भी फैसिलिटी दी हुई है, cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाइए, उसमें पूरी डिटेल प्रोवाइड कीजिए, आपकी FIR लॉन्च हो जाएगी। फिर आपको पुलिस स्टेशन में आपका पूरा एक वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका उस टाइम पे आपको बुलाएंगे, आपका पूरा स्टेटमेंट लेंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन कार्यवाही वो शुरू करेंगे। ऐसा एक दूसरा केस आपके साथ में शेयर करूंगा कि अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, ये गवर्नमेंट ने अभी ये कोरोना वायरस चलता था तो गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शन दिया हुआ था कि आपको ये जो है मास्क पहनना है, और अगर आप घर से बाहर कहीं भी जाते हो तो आपको पूरा मतलब आपका प्रिकॉशन रखना है, आपका हाथ बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है अपने आप को। तो एक कंप्लेंट मेरे पास ऐसा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, हम नाम नहीं ले सकते पर मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में उसका आइडिया दूंगा। तो ये अभी कुछ महीने पहले की बात है। तो वो बंदे ने ऐसा बोला कि फोन करके कि भाई आपका रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट है उसमें आप इस तरह का वो बोलो कि गवर्नमेंट जो है वो ये जो बोल रही है मास्क पहनो, ये सब फ्रॉड है, ये खुद का धंधा बढ़ा रही है, गवर्नमेंट लोगों को मारना चाहती है, इस तरह से कुछ एलिगेशन लगाए हुए थे। इससे भी ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी लिमिटेशन है कि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो उस तरह से अलग अलग चीजें उसमें लिखी हुई थी। तो वो जो चीजें उसमें लिखी हुई थी उस हिसाब से एक
ऑडियो वायरल हुआ था सब जगह पे। तो ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें उसने रिकॉर्डिंग करके ये सब भेजा था कि अगर आपके घर पे क्या खाना बन रहा है वो भी कोई थर्ड पार्टी रशिया में बैठी हुई है वो डिसाइड कर रही है, जो आपका ये वो। तो अभी इसमें सेक्शन 66A जैसा कि स्क्रैप डाउन हो गई वो यूज नहीं हो सकती। तो ये जो चीज है वो क्या है, ये हो गया साइबर टेररिज्म। आप इसको साइबर टेररिज्म कैसे गिन सकते हो, क्योंकि ये कोरोना की महामारी चल रही है, गवर्नमेंट हमारे ये गवर्नमेंट के सामने जो आक्षेप किए हुए बहुत हार्ड लेवल के हैं, और इस वजह से ये साइबर टेररिज्म है। अगर इसमें आप ये करने जाते हो, ये सब चीजें बोलते हो गवर्नमेंट के, तो ये आप साइबर टेररिज्म के अंदर आप वो पुलिस आपको जेल जा सकती है। नो डाउट हमने FIR करवाई थी, पर नो डाउट जो एक्यूज था उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पब्लिकली पेपर में एक जाहिर माफी भी मांग ली। तो हमने बात नहीं बढ़ाते हुए वहीं खत्म कर दिया। ये हो गया साइबर टेररिज्म सेक्शन 66F। अगर सेक्शन 66F में अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आपका बेल नहीं होगा और पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी उसमें। तो ये एक दूसरा केस हो गया। अब एक छोटी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2008 का जो अमेंडमेंट हुआ उसके साथ में क्या क्या अमेंड हुआ साथ में। तो 2008 में जो अमेंडमेंट आया है हमारा, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अलावा, अमेंडमेंट एक्ट के अलावा जो इंडियन पिनल कोड है 1860 का, फिर एविडेंस एक्ट है 1872, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट है 1891, RBI एक्ट है, वो सब कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हुए और अमेंड हुए। अभी इससे क्या हुआ कि अगर आपके कोई भी पैसा जाता है तो RBI आपको हेल्प करेगी। अगर आपने आपका OTP कहीं शेयर नहीं किया हुआ है और आपका जो पिन नंबर है वो आपके पास में, और किसी थर्ड पार्टी ने आपका जो पैसा क्रेडिट कार्ड नंबर हैक करके और इस तरह से कोई भी तरह से आपका डैमेज किया है आपको, तो RBI की कुछ गाइडलाइंस है। अगर आप जैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ, विदिन 24 आवर अगर आप बैंक में जान करते हो, पुलिस वाले को अगर आप इन्फॉर्म करते हो, तो आपका पैसा वापस आ सकता है। अभी होता क्या है, अभी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अभी एप्लीकेबल कहां होगा, एक बड़ा क्वेश्चन अभी मैं बीच में किसी को एक सेमिनार में मेरे को किसी ने क्वेश्चन किया था, किसी स्टूडेंट ने, कि सर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया, बहुत सारे जो एक्ट है सिर्फ होल इंडिया पर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अप्लाई होता है, ये एक्ट का क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी, होल इंडिया पूरा इंडिया, इसमें जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होगा। दूसरा, अगर ये आपका देखा जाए कि अगर ये जितने भी इंडिविजुअल है पूरे भारत के नागरिक तो है, वो तो इसके दायरे में है ये, पर अगर फॉरेन नेशनल है जो क्राइम करता है तो उसको भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आप जेल में डाल सकते हो। इसका भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे वहां 420 एक चीटिंग की सेक्शन है, फ्रॉड चीटिंग जो आपके साथ हो रहा है, उसमें 420, अब बहुत बार मजाक में बोलता कि तू 420 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक फ्रॉड चीटर है तू। तो एक 419 स्कैम था, ये जब अराउंड 2000 में जब नया कंप्यूटर आया तो उस टाइम पे 419 स्कैम बहुत चला था। अभी 419 स्कैम है क्या? 419 स्कैम एक नाइजीरिया में सेक्शन है, जैसे हमारा 420 है, उनके वहां 419 है, वो चीटिंग की सेक्शन है। तो एक हैदराबाद में एक छोटे से रूम में, ये आई एम टॉकिंग अराउंड ईयर 2000, उस टाइम पे एक छोटे से रूम में बैठ के 6 नाइजीरियन यहाँ पे क्राइम कर रहे थे। वो क्राइम कैसे कर रहे थे कि किसी लड़की को फंसाया, उसको बोला कि आई एम फ्रॉम USA UK, पहले उससे बातचीत करी, उससे बहुत अच्छी तरह से बातचीत करी, उससे दिन रात उसको मैसेजेस किए, अच्छी अच्छी बातें करी, फिर उसको बोला कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ और मैं तेरे लिए, मैं US और UK जहां से मैं हूँ वहां से आ रहा हूँ और मैं तेरे लिए इतनी इतनी चीजें लेके आ रहा हूँ। तो लड़की खुश हो रही, चलो ये बंदा आ रहा है, फॉरेनर है, मेरे को फॉरेन जाने मिलेगा। और हमारे इंडिया में है कुछ कुछ जगह पे उन लोगों को फॉरेन जाने को मतलब थोड़ा मोह है उन लोगों को। तो एक उस टाइम पे ऐसा हुआ था। तो हैदराबाद की एक लड़की थी, उसको एक बंदे ने बोला था कि मैं आ रहा हूं और मैं अभी एयरपोर्ट में फंसा हुआ हूं, तो मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, लोग क्या, मैं तेरे को ये यहाँ से मेरे को पकड़ लिया है, मेरे पास पैसा नहीं है ड्यूटी भरने के लिए। तो वहां के जो ऑफिसर था, एयरपोर्ट से ऑफिसर ने उस लड़की को फोन किया कि ये बंदा है, ये क्या आप इसको जानते हो? लड़की ने बोला हाँ जानता हूँ, मैं इसे शादी करने वाली हूँ।
तो वो बोले ठीक है, ये बंदा आया हुआ है और ये कम से कम आपके लिए कम से कम 20-22 लाख का कुछ सामान लेके आया, इसमें आईफोन है, कंप्यूटर है, ज्वेलरीज है, ऐसी ऐसी सब चीजें उसने बोली। और लड़की को बोला अगर आप पैसा भरते हो तो इसको छोड़ेंगे, अगर पैसा नहीं भरते हो, उसमें कुछ 5 या 6 लाख कुछ भरने के थे, अगर आप नहीं भरते हो तो इसके साथ में आपको भी अंदर करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी केस चलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए चीजें लेके आया था, तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। तो लड़की ने बोला जब मेरे को 20 लाख का सामान मिल रहा है, 22 लाख का सामान मिल रहा है और मेरे को शादी करनी है, फॉरेन जाना है, तो उसने 5 या 6 लाख कुछ ट्रांसफर कर दिए, जो अकाउंट दिया था उन्होंने। जैसे ही अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसने वापस फोन लगाया, पर जो अक्यूज था उसने सब फोन बंद कर दिए थे, उसका अच्छा खासा पैसा आ गया था, तो उसने फोन बंद करके वो वहां से वापस सब बंद कर दिया। हैदराबाद पुलिस ने इसका पूरा इंसिडेंट का कॉग्निजेंस लिया, उन्होंने ये चीज बहुत जल्दी क्रैक करी और वो जो आरोपी थे पकड़े गए। तो मतलब पहले नाइजीरियन स्कैम बहुत चलता था इंडिया में। पहले अराउंड 2000 से 2008 जो मेजर क्राइम चलते थे वो ये थे कि एक हैकिंग। पहले लोग साइबर सिक्योरिटी इतना समझते नहीं, लोग फोन जरूर लेते थे, पर फोन में ना उन्होंने कभी फोन में लोग पोर्नोग्राफी देखते थे, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते थे, जिसकी वजह से अब जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जिनको आदत होती है कि फोन में रिंगटोन डालना, वॉलपेपर लगाना, थर्ड पार्टी कोई ऐप डाउनलोड कर लेना। आप देखोगे, आप कभी भी सपोज आपने कोई भी एक मेल एप्लीकेशन या कोई भी ऐप डाउनलोड करी है आपने, उसमें एक एग्रीमेंट होता है, कभी किसी ने नहीं पढ़ा, नो डाउट हम भी नहीं पढ़ते थे, पर जिस दिन से हम लोग ये फील्ड में आए हैं और हमारा ये साइबर क्राइम का मेन जो हुआ है उसके बारे में पढ़ने लगे। आप देखो कि आप कोई भी ऐप को अगर ऑथेंटिकेट का परमिशन देते हो तो आप पूरा परमिशन दे रहे हो, तो वो चाहे तो आपका टोटली जो आप कर रहे हो, आपके जान बाहर आप वो पूरा वो देख सकता है, आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, वो आपको पूरा, आपकी प्राइवेसी भी उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये क्राइम ज्यादा हो रहे थे। इसके अलावा दूसरे जो क्राइम थे, सेक्शन 65, हम थोड़ा वापस बुक पे जाते हैं। सेक्शन 65 टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स कोड। अब कंप्यूटर सोर्स कोड क्या है? अभी आप देखोगे रोज टीवी में कुछ एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई आपके बच्चे को कोडिंग सिखाइए, ऐप बनाएगा, प्रोग्रामिंग करेगा, तो उस तरह से वो आगे बढ़ने की बोलते हैं। एक वो चीज हो गई। तो कोई बंदे ने खुद का एक प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम मतलब टीवी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया है प्रोग्रामिंग। अगर कोई उसमें छेड़छाड़ करता है या किसी जैसे एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, तो एंड्रॉइड जो ओपन सोर्स है, अगर किसी बंदे ने उसमें ओपन सोर्स में कोई एप्लीकेशन डेवलप करी है, उस एप्लीकेशन को अगर किसी ने छेड़छाड़ करके खुद का नाम दे दिया तो उसको बोलेंगे टेम्परिंग विद सोर्स कोड। अब टेम्परिंग विद सोर्स कोड में 3 साल का सजा है और उसमें कुछ फाइन है। अब सेक्शन 65 के बाद हम देखेंगे सेक्शन 66, उससे पहले देखेंगे सेक्शन 43। अब सेक्शन 43 क्या है? सेक्शन 43 है डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। अब डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम मतलब पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। अगर कोई भी बंदा आपकी विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ द कंप्यूटर एक्सेस करता है, ऑल्टर करता है, हैक करता है, तो उसमें पेनल्टी होगी अंडर सेक्शन 43। तो उसमें सजा नहीं है, उसमें डैमेजेस है, और वो चीज है सेक्शन 66 के अकॉर्डेंस में। अब सेक्शन 66 क्या कहता है? तो सेक्शन 66 कहता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। अब कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में क्या होगा? उसमें भी अंडर अलग अलग बाइफरकेशन दिया हुआ है। सेक्शन 66 फिर सेक्शन 66A था जो सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप डाउन कर दिया। अब सेक्शन 66B हो गया, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर। अभी आप देखोगे बहुत लोग है कि कंप्यूटर रिसोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपकी जान बार आपके कम्युनिकेशन को वो करता है, और आपके डिजिटल आइडेंटिटी जो है, आपका कोई पेन ड्राइव हो गया या कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, उसमें से कोई भी ऐसा करता है डिसऑनेस्टली आपकी जान बार, तो उसको सेक्शन 66B में गिना जाएगा। उसमें 3 साल की सजा की जोगवाई है और 1 लाख रुपए का फाइन है। फिर देखते हैं पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। अभी ये क्राइम बहुत चल रहा है। अगर आपने आज या कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट में थोड़ा बताता हूं आपको। अभी जैसे कि कोई भी कार्तिकेय पानेरी बनके आपके साथ चैट करेगा,
तो वो मेरी आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहा है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा नाम की प्रोफाइल बनी हुई है जो मेरी नहीं है, हम डिलीट करवा देते हैं, तो आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, 3 साल और 1 लाख रुपए की सजा है, अरे 1 लाख रुपए आपको फाइन है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि कोई भी बंदा कि मेरा पासवर्ड यूज कर लेता है, मेरा डिजिटल सिग्नेचर है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, कि मेरी कोई भी पर्टिकुलर चीज है वो मेरी चोरी कर लेता है, पासवर्ड हो गया, मेरा डेटा हो गया, तो आइडेंटिटी थेफ्ट में उसमें उसको सजा मिलेगी। अब सेक्शन 66D चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या हो गया, कोई भी बंदा आज कोई खुद के फोटो नहीं लगाता है, आप देखेंगे फेसबुक प्रोफाइल में हो गया, व्हाट्सएप में हो गया, वो हीरो हीरोइन की एक इमेज लगा देता है। और कभी कभी ऐसा होता है, अभी कल आज के पेपर में ही है कि किसी बंदे ने किसी लड़की से प्यार किया था, पर वो लड़की ने मना कर दिया, वो उसने रिक्वेस्ट डाउन कर दी कि नहीं मैं तेरे को प्यार नहीं करती। तो उस बंदे ने उस बंदी का फोटो लिया, एक फेक आईडी बनाया, उसने फेक आईडी बना के लोगों को उसने वो सर्कुलेट किया कि भाई मैं एक कॉल गर्ल हूं और ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो उसकी प्रोफाइल पे लोगों ने अश्लील कमेंट करना शुरू कर दिया, उसको हैरेस करने लगे। बंदी को मालूम भी नहीं था कि ये कैसे क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है और मैं किसी को जानती नहीं हूँ। लोग उनको अश्लील कॉल करने लगे। तो इस चीज में अगर आप नो डाउट ये चीज पकड़ा जाती है, लोग क्या है, लोगों को नॉलेज नहीं है। अब वो कैसे पकड़ा जाते हैं, ये क्राइम करते हैं। आप जैसे कि पहले के जमाने में क्राइम करते थे तो कहीं ना कहीं फुटप्रिंट हो गया, पुलिस वाले स्नीफर डॉग लेके जाते थे या किसी को हुलिया पूछते थे। अभी यहाँ पे भी प्रोसीजर वही है, पर इसमें कैसा है, ये जो कंप्यूटर को टारगेट करके क्राइम होता है, तो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स आप छोड़ देते हो। अब डिजिटल फुटप्रिंट आप जो छोड़ते हो उस टाइम आपका आईपी एड्रेस होता है, कि जैसे सपोज मैं अगर जियो का, एयरटेल का, टिकोना, कोई भी कंपनी का, वोडाफोन का नेट यूज कर रहा हूं, तो एक आईपी एड्रेस होता है। तो वो आईपी एड्रेस से पुलिस ट्रैक कर सकती है मेरे को कि ये जो क्राइम हुआ है ये आईपी एड्रेस ही है। तो अगर आप रिटर्न कंप्लेंट देते हो, पुलिस जो है वो आईपी एड्रेस लेके उस चीज को ट्रैक करती है। अब वो ट्रैक करने के बाद में उनको टोटली मिलता है कि भाई ये आईपी एड्रेस इस बंदे को एलोकेट किया गया है और ये बंदा इस कंप्यूटर से उसके चैट कर रहा है और ये इसका मालिक है। तो उसमें 3 साल की सजा है। अब सेक्शन 66E वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अब प्राइवेसी क्या है, हमारे इंडिया में कैसा है, किसी को कोई प्राइवेसी की पड़ी नहीं है, हम कुछ भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, किसी को भी। अभी रिसेंट एक इश्यू हुआ था 2 दिन पहले, सूरत का इश्यू है। कुछ सब्जी मार्केट में एक आदमी किसी औरत का वीडियो बना रहा था। अब वो वीडियो जब बना रहा था, लड़की को पहले डाउट गया कि ये क्या कर रहा है, इसने मेरे सामने मोबाइल कब से ये मोबाइल लेके खड़ा हुआ है, ये कर क्या रहा है। लड़की को डाउट गया, उसने उसको जाके पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो उसने मोबाइल चेक किया तो उसमें उसके वीडियो थे उस लड़की के। नो डाउट वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, पर उसकी प्राइवेसी, आज कोई भी बंदा घर में बैठा हुआ है, अगर आपने उसकी प्राइवेसी, और आजकल बहुत इजी हो गया है, एक सपोज आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि चेंजिंग रूम हो गया, कोई भी मॉल में जाते हो, चेंजिंग रूम में एक कैमरा होता है, वो लोग फिट कर देते हैं। आपकी जान बार वो लोग उस चीज को यूज करते हैं, आपकी प्राइवेसी भंग होती है, आपका फोटो यूज करते हैं, उसको वायलेशन प्राइवेसी है। तो और अगर वो आपकी इमेज ट्रांसमिट करता है तो उसमें 3 साल और 2 लाख। अभी जैसे कि हमने पहले अभी एक सेक्शन 66 पे हम आते हैं, 66F टेररिज्म, वो मैंने आपको डिटेल में पहले ही समझा दिया। अब सेक्शन 67 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अब वो क्या है, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑप्शन मटेरियल। अब ऑप्शन मटेरियल क्या होगा, पहले जब कंप्यूटर का वो जमाना नहीं था तब लोग मैगजीन के थ्रू और अलग अलग मीडियम के थ्रू थोड़ा जो पोर्नोग्राफी का वो लोग देखते थे। अभी कोई बंदा आपके बाजू में बैठ के, बस में बैठ के, मेट्रो रेल में बैठ के, गाड़ी बैठ के अगर वो पोर्नोग्राफी देख रहा है, कोई स्टोरी पढ़ रहा है या कोई ऐसा अश्लील साहित्य देख रहा है, तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पर अगर जो वो ये ऐसा करते हुए पकड़ में आता है तो वो सेक्शन 67 में उसको सजा हो सकती है। अब उसमें क्या, अगर वो पहली बार ऐसा है कि वो पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ करता है या पब्लिश करता है या ऐसा कोई किसी के प्राइवेट मूवमेंट कैप्चर करता है और वो फॉरवर्ड करता है, या किसी ने आपको भेजा, आजकल बहुत चलन हो गया, सबको हीरो बनना है, सबको फटाफट आप देखेंगे एक, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर पे हो या कोई भी सोशल मीडिया पे हो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको फॉरवर्ड्स आते हैं।
अभी जो फॉरवर्ड जो आपके ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग फन के लिए, मजाक मस्ती के लिए किसी की इमेज मॉर्फ करके भेज देते हैं, या फिर किसी का अभी एक 2 दिन पहले ही अभी कल का ही केस है मेरे पास आया हुआ है, किसी स्कूल में ड्यूरिंग द जूम मीटिंग कोई थर्ड पार्टी ने ज्वाइन कर लिया और वो कपड़े खोलने लगा और अश्लील हरकतें करने लगा चालू क्लास में। नो डाउट कुछ लोग जब वो मतलब मीटिंग सेशन एंड हो रहा था तब हुआ है, तो इतना नुकसान नहीं पहुंचा, पर अगर कोई बंदा आपके वहां तक पहुंच सकता है तो वो, अगर जो पहली बार है ऐसा कुछ हो रहा है तो 3 साल की सजा और 5 लाख का उसको फाइन हो सकता है। और अगर सेकंड टाइम अगर ये होता है ये चीज, तो अगर सेकंड टाइम होता है तो 5 लाख उसको 5 साल की सजा और 10 लाख का फाइन हो सकता है। अब सेक्शन 67 में ए और बी सेक्शन है, उसमें मटेरियली मतलब अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोल सकते हो आप, अगर ये बहुत सीरियस क्राइम है। अगर बच्चों को लेके अगर आप कुछ करते हो, आप लोग रोज पेपर में पढ़ते होंगे कि आपका खून खौलता है कि किसी बच्चे का मतलब जो बच्चा अभी समझने लायक नहीं हुआ उसका रेप हुआ, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी उसका रेप करते हुए या उसका वीडियो कुछ वायरल हुआ, या उसके असली जो फोटो है लड़की लड़का छोटा बच्चा उसका वायरल करता है, तो वो बहुत सीरियस क्राइम है। उसमें 5 साल की सजा और फाइन है, और अगर देखा जाए तो 7 साल से 10 साल 7 साल का भी हो सकता है, और उसमें बेल नहीं मिलेगा आपको, और 10 लाख तक का फाइन है। अब सेक्शन 72 है मतलब पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। अब जो मेन ये है, अभी इसके अलावा हम देखा जाए तो मैंने जैसे आपको बताया ये अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम हुए। अभी ये जो मैंने आपको सेक्शन वाइज समझा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 11 में ऑफेंसेस है उसको, और उसकी जो पेनल्टी है वो उसमें दिया हुआ है। पर इसके अलावा हमारे रियल टाइम जो रियल लाइफ में जो केसेस आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्राइम होता है जहां पे मेजर जो क्राइम आते हैं आज की तारीख में सबसे मेजर क्राइम आते हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड है। सेकंड हो गया कि अब मेरा पर्सनल व्यू आपको बता रहा हूं कि जो सेक्शन 66 है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करी, हो सकता है कहीं ना कहीं अभी भी वो बातें चल रही है कि उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ गवर्नमेंट वापस लाने को सोच रही है। अभी हो सकता है कि अगले साल तक कुछ इसमें अमेंडमेंट आए, तो आना भी चाहिए, क्योंकि सबको कैसा है, सब आज कोई कुछ ऑनलाइन किसी को भी कुछ भी बोल रहा है, वो बोलता है मेरे पास गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई एक लिबर्टी है, तो एक वो हो गया। तो आज एक ये सब भी चल रहा है। और अब अच्छा चलो ये हो गया टाइप ऑफ साइबर क्राइम। अगर आप विक्टिम हो गए तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपके नॉलेज में कोई साइबर क्राइम आ रहा है और तो आप क्या कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई हुई है। सर टीम वो 24/7 मॉनिटर कर रही है इन सब चीजों को। एक नोडल एजेंसी है हमारे, जैसे यूएस में CIA वगैरह है, हमारे सर टीम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हो गई है। और दूसरा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप डेफिनेटली यू कैन गो टू साइबर सेल। अगर आपके पास साइबर सेल नहीं जा सकते, आपको नॉलेज नहीं है, हो सकता है बहुत बार साइबर सेल है वो भी ओवरबर्डन हो रहा है, क्योंकि छोटे आजकल बहुत अभी मैं एक थोड़ा और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा, थोड़ा 5 मिनट में मैं टाइम में कंक्लूड करने का कोशिश करता हूं। एक 2000 में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी 2005 में। उससे पहले मैं 2-3 साल थोड़ा IT फील्ड में काम किया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया है, थोड़ा हैकिंग में किया है, अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं। आप मेरा पर्सनल अगर मैं आपको व्यू बताऊं तो 2005 से लेके 2020 तक, और यूं कहूं तो 2000 जब IT एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है 17 अक्टूबर 2000 से लेके आज 17 मतलब 20 साल एग्जैक्ट पूरे हुए हैं कल। तो 20 साल में कुछ चीजें बदली है और कुछ चीजें बदलनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। साइबर क्राइम लोग क्या समझते हैं, मेरे ईमेल आईडी हैक हुआ है, नया बना लूंगा। लोग सीरियस नहीं है, लोग अवेयर नहीं है। कहीं ना कहीं लोग, गवर्नमेंट है, RBI है, हम लोग लॉयर्स हैं, या फिर बहुत सारी अलग अलग एजेंसी है जो रेडियो के माध्यम से ऑनलाइन वर्चुअल हो गए मीटिंग्स हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बोलते हैं कि आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। पेटीएम का फ्रॉड हो गया, या अलग अलग वेरिफिकेशन फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया। अभी ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गई है। अब एक बहुत टाइम पहले मतलब मेरे को किसी ने पूछा था कि अगर मेरे को साइबर क्राइम से बचना है, ये मैं आपको 2006 या 7 की बात कर रहा हूं। उस टाइम में जब मैं लोग साइबर लॉयर समझते नहीं थे,
2005 में मैंने जब एज ए साइबर लॉयर मेरा कैरियर शुरू किया, तो लोग ऐसा बोलते थे कि आप साइबर कैफे चलाते हो। लोगों को साइबर लॉयर क्या होता है उसकी नॉलेज नहीं था। तो लोगों को इवन ये था, अब कि हम किसी का नाम या किसी का ऐसे नहीं बोलते, डेजिग्नेशन का नहीं बात, पर मैं जुडिशरी में किसी ने, एक रिस्पेक्टेड जज हमारे थे, उन्होंने बोला कि ये 2005 की बात कर रहा हूं मैं, जब मैंने नया नया वकीला ज्वाइन किया था, तो समवन इंट्रोड्यूस मी दैट ही इज अ साइबर लॉयर एंड ही इज इनटू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड साइबर क्राइम। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मेरी वेबसाइट चेक करना। मैंने बोला डेफिनेटली। आई फेल्ट प्राउड कि किसी जज के पास उस जमाने में, जब मेरी भी वेबसाइट नहीं थी या मेरा भी ईमेल आईडी मतलब नया नया बना था, उनकी वेबसाइट है। मैंने बोला डेफिनेटली सर, मैंने पेन निकाला, मैंने बोला सर आप बताइए, मैं डेफिनेटली विजिट करूंगा। तो उन्होंने बोला xyz@gmail.com। अब नो डाउट होता है वो एजेंट थे, तो उनको वेबसाइट और ईमेल उनका फर्क नहीं पता था। इवन आज की तारीख में जब हमको मालूम है अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस था, हम एक्टिवली वो केस फॉलो कर रहे थे। तो और मैंने बहुत सेमिनार लिए हुए हैं पुलिस वालों को, कहीं ना कहीं उनको लेक्चर दिए हुए, उनको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई हेल्प देम। तो 2000 से लेके अभी तक मैं इम्प्रूव हुआ है, हमारी पुलिस हाईटेक हुई है, बहुत सारे अलग अलग एनजीओ चल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉयर्स आए हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी इस चीज में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आप लोग सब लॉ स्टूडेंट है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे से अच्छे लॉयर बने और इतने कामयाब हो कि जो इंडिया को आप लोग प्राउड, जो मोदी जी का सपना है मेक इन इंडिया, वैसे मोदी जी एक प्राउड से कह सकते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट लॉयर है। जैसे हरीश साल्वे जी है, ऐसे अलग अलग आप लोग में से भी कोई हो सकता है, आप में से जो अभी सुन रहा है कोई बने। मैं चाहता हूं, मेरी आपको शुभकामनाएं। और जो डीटी लॉ कॉलेज है एक परिवार है हमारा, भविष्य में भी ऐसे अलग अलग जो वेबिनार सेमिनार करता रहे, और हम लोग और अच्छे अच्छे जो मितेश जी और अलग अलग जो एडवोकेट्स है हमारे फ्रेंड, वो इसका पार्ट बने, मैं दिल्ली चाहूंगा। ओवर टू यू अंकित जी। खूब खूब धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे विद्यार्थी को साइबर क्राइम के बारे में आपने ज्ञान दिया। आपने बहुत अच्छी बात की कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब समाज में अगर जो परिवर्तन आता है तो लोगों में भी परिवर्तन आता है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना कितना इम्पोर्टेंस हो। आपने सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताया। आपने अलग अलग केस के आधार पर साइबर क्राइम का बहुत ही अच्छी तरीके से विद्यार्थियों को उनको समझाया कि किस तरह का मतलब साइबर क्राइम हो सकता है, और किस तरह के अभी कितना इम्पोर्टेंस है साइबर क्राइम का लीगल फील्ड में, लीगल एजुकेशन में। तो खूब खूब धन्यवाद सर आपका। और आपका बिल्कुल धन्यवाद। जो आपने 20 साल में, आज हमें बोला जाए तो एक एनिवर्सरी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आज वैसा बोला जाए तो 17 कल थी, पर हमारे लिए आज भी है। तो एग्जैक्ट 20 साल हो गए, और मेरे को मौका मिला है कि आप लोग के साथ मैं शेयर कर पा रहा हूँ ये चीज को, और स्टूडेंट को मैं कुछ मेरा जो नॉलेज मैं शेयर कर पाया। मैं ये नहीं बोल रहा मैं कुछ सिखा रहा हूँ, पर मैं मेरा जो नॉलेज है मेरे को इतने सालों में जो आया, जितना हो सका, जो टाइम लिमिट 1 घंटे की टाइम लिमिट थी, मैं जो शेयर कर पाया हूँ, वो आपने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है अभी डीटी लॉ कॉलेज में, रामी साहब ने, आपने मतलब बहुत, मैं आभारी हूँ इस चीज का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक्चुअली विद्यार्थी मित्रों, ये बात बहुत सही है, क्योंकि जब भारत का जब आजाद हुआ तब से ही हम गेट जो एग्रीमेंट था, गेट एग्रीमेंट में हम शामिल हो गए थे 1945 में, और WTO की जब रचना हुई तो हम WTO को भी तुरंत सभ्य बन गए थे। और जैसे कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो लॉ में भी परिवर्तन लाने की बहुत जरूरत होती है। तब WTO और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत मतलब उसकी जरूरत जब पैदा हुई वैश्विक व्यापार के लिए, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत अच्छा एक इंट्रोड्यूस करना है। तो उस वक्त के तत्कालीन बड़ा प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंट्रोड्यूस किया। बहुत सारी चीजें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। 2001 में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस